Now, today we are going to start session number 10, that is last session of chapter number 5, arithmetic progression. And in this session, what we are going to do, we are going to complete exercise 5.4, that is optional exercise. And the second one, a small concept is there, which is not given in the book. And based on that, we'll do some 4 or 5 practice questions. उसके बाद लास्ट में मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस दूंगा. So let us start with exercise 5.4. So first question, which term of the AP 121, 117, 113 so on is its first negative term? So ऑप्शनल एक्सरसाइज के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट ये रहता है कि उसमें स्टार मार्क दिया हुआ है एंड अंडर दिस स्टार मार्क what is given that in the bottom of the book that this exercise is not for examination point of view. So ऐसा मत सोचना क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. सिमिलर क्वेश्चन काफी बार आ चुका है. सो 2016 या 17 में भी आया था एक सेम, बिल्कुल सेम है यही वाला क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? 121. एंड हाउ विल यू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म माइनस first term, right? So a2 minus a1, that is 117 minus 121 is equals to minus 4. So we got the value of a also, d also. अब जो नेगेटिव टर्म जो होता है वो लेस देन 0 रहता है. So we'll start with let a n, we'll use this formula, nth term formula, that is a plus n minus 1 into d, and let us take a n is less than 0. And we'll substitute the value of the formula of an. So a का value 121 है और d का value minus 4 है. So we have substituted here. Now open this bracket, पूरा open bracket करो यहाँ पर. So 121 ये हो जाएगा minus 4n और ये हो जाएगा plus 4. Now what we can do, we can shift minus 4n to this side. एक्चुअल में जब इनइक्वालिटी साइन रहता है तो शिफ्टिंग नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों साइड 4n ऐड कर रहे हैं. सो इफ वी ऐड 4n टू बोथ साइड्स, नाउ लिसन केयरफुली, अगर हम लोग सेम नंबर को सेम साइन वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. सो वी आर हियर. सो nth फॉर्मूला हम लोग लिए थे an इज लेस देन 0. Now substitute the value of a and value of d. Now open this bracket, it will become minus 4 plus minus 4n plus 4. So minus 21 minus 4n plus 4. 121 plus 4 हो जाएगा 125. Now we'll add both side by 4n. So 4n जब ऐड करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. Now we'll write in reverse. 4n को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और 125 को राइट साइड में. So 4n is greater than 125 and n is greater than 125 by 4. So इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या मिल रहा है? n is greater than 31 1 by 4. Now n should be a natural number. So 31 1 by 4 के बाद वाला जो पहला नेचुरल नंबर होगा वो वाला फर्स्ट नेगेटिव होगा. Is that clear? Now let us move toward the second question. The sum of the third and the seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of an AP. In the question it is given that third and seventh term, मतलब A3 और A7. The sum is given 6. So first let A and D be the first term and the common difference of given AP. Now according to the first condition, A3 plus A7 is equals to 6. What is A3? Anyone? How will you write A3? A plus 2D. A plus 2D. Okay. How will you write A7? A plus 2D. A plus A7. 6D. Okay, fine. Very good. So A plus 6D. अब म्यूट कर लो. A plus 2D plus A plus 6D is equals to 6. Now A plus A हो जाएगा 2A और 2D plus 6D हो जाएगा 8D. Now divide all by 2. तो ये हो जाएगा A and this term will become 4D and this term will become 3. Right? Next
कंडीशन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट इज 8, सो A3 into A7 is equals to 8. नाउ A3 हम लोग देखे तो A plus 2D है और A7 A plus 6D. Now what we will do, we will replace A by 3 minus 4D. फर्स्ट इक्वेशन में देखो, हाउ विल यू राइट A, 4D को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 minus 4D. नाउ इन दिस विल रिप्लेस A by 3 minus 4D. तो दोनों टर्म में हम लोग रिप्लेस करेंगे तो 3 minus 4D plus 2D हो गया and 3 minus 4D plus 6D हो गया. So minus 4D plus 2D will become minus 2D and minus 4D plus 6D will become plus 2D. So finally we'll get 3 minus 2D into 3 plus 2D is equals to 8. Now this is in the form of A plus B into A minus B. So we can use that formula, A square minus B square. So ये हो जाएगा 3 square minus 2D whole square. So we can write 9 minus 4D square is equals to 8. Now interchange 4D square and 8. तो 8 यहाँ पर आएगा तो minus 8 हो जाएगा और minus 4D square right hand side जाएगा तो plus 4D square हो जाएगा. So 4D square is equals to 9 minus 8. And 9 minus 8 is 1. 9 minus 8 is 1. And D square is 1 by 4. And D will be equals to plus minus 1 by 2. ओके, सो D का वैल्यू यहाँ पे प्लस 1 by 2 आया और माइनस 1 by 2 आया. तो दोनों के लिए हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकालेंगे. दो केस रहेगा यहाँ हमारे पास. फर्स्ट केस विल टेक D इज इक्वल्स टू प्लस 1 by 2 एंड सेकेंड केस विल टेक D इज इक्वल्स टू माइनस 1 by 2. सो व्हेन D इज इक्वल्स टू 1 by 2, A कितना होगा? A क्या था? फॉर्मूला A का कितना था? 3 minus 4D. D minus A plus 4D is equals to 3 था. चलो इसी में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो यहाँ पर इसको 2 से कैंसिल हो रहा है, सो 2 मिलेगा. नाउ दैट 2 यू कैन शिफ्ट इट टू राइट हैंड साइड. सो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 3 minus 2 दैट विल बी 1. सो वी गॉट A और D दोनों मिल गया. यहाँ पर हम लोग को निकालना है S16, सम ऑफ 16 टर्म्स. So which formula we will use, first or second? First formula. कोई एक जन बताओ. Anyone? First formula क्या है बताओ. Sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1d. Very good. Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now we'll substitute n is equals to 16, a is equals to 1 and D is equals to 1 by 2. ओके, सो यहाँ पे कितना मिलेगा 15. सो ये 15 by 2 हो जाएगा एंड 16 by 2 को हम लोग 8 लिख सकते हैं. सो 8 into 2 plus 15 by 2. नाउ विल टेक एलसीएम हियर. सो जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला 4 हो जाएगा. 4 plus 15 by 2 दैट विल बी 19 by 2. और ये 8 से कैंसिल हो रहा है. 8 जो है 2 से कैंसिल हो रहा है तो हम लोग को 4 मिलेगा. 4 into 19 will be 76. So final answer is 76. ये फर्स्ट केस है. Now we'll find the S16 in second case. That is D is equals to minus 1 by 2. Here also we'll find first A. A का वैल्यू D का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर minus 2 मिलेगा. If we shift minus 2 to this side, that will become plus 2 and 3 plus 2 is 5. So we got A and D also. So we'll write the same formula. Now substitute n is equals to 16 and A is equals to 5 and D is equals to minus 1 by 2. Substitute कर दिए. 16 by 2 8 हो जाएगा. 2 into 5 10 हो जाएगा and this will be minus 15 by 2. This minus 15 by 2. So 10 minus 15 by 2. Now take LCM. If we take LCM, this will become 20 minus 15 by 2. तो 20 minus 15 हो जाएगा 5 by 2. 8 हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा. Finally 4 into 5 that is 20 is the answer. So इसके दो आंसर्स हैं.
One is 76, another answer is 20. So this question is also a very important question for standard examination. Now question number Sir, 3. both the answers are correct. हाँ, both answers you have Like to in find. one, क्या हो गया, क्या डाउट है? सर एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो आंसर्स कैसे करेक्ट हो सकते हैं? एक d 1/2 के लिए और d -1/2 के लिए. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो. What is the statement given in the question? The sum of the third and the seventh term of an AP is 6. तो वो AP जो है वो दो अलग अलग भी हो सकता है, सिर्फ पर्टिकुलर AP के लिए नहीं बोल रहा है. उसमें दोनों का जो सम है 6 है और उसका प्रोडक्ट 8 है, तो दोनों केस में आ रहा हम लोग का. ओके सर. राइट, जैसे हम लोग का पिछले क्वेश्चंस में n का 2 वैल्यू आया था. राइट, तो हम लोग दोनों आंसर पॉसिबल है करके शो किए थे, इफ यू रिमेम्बर. लेकिन अगर जैसा तुम्हारा डाउट है यहाँ पर एक ही एपी में तो एक ही एन आना चाहिए, तो वैसा नहीं है. वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल आंसर. सो यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर्स है. वन इज फॉर d इज इक्वल टू +1/2 और दूसरा -1/2. योर डाउट इज क्लियर? यस सर. ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं फिर से नोट पैड में जा रहा हूं मैं. एक मैं ये मान लो हम लोग के पास ये मैं कितने सारे बना रहा हूं वो मत देखो. अभी मान लो मेरे पास टोटल यहां से लेकर यहां तक मान लो हम लोग का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ दो के बीच का डिस्टेंस दोनों बराबर है 2 सेंटीमीटर है. सो हाउ मेनी हम लोग पिंस रखें, मान लो यहाँ पर ये सारे पिंस रखें विथ इक्वल डिस्टेंस दैट इज 2 सेंटीमीटर, and the total distance between the first and the last is 8 centimeter. So how many pins are there? ऊपर मत देखो, अपना कंसेप्ट बताओ. Total distance is 8 और Because we are dividing 8 by 2. ओके, 4 आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो दिख रहा है ना कि 5 है. ऊपर देखो, अब वो 5 कैसे है बता रहा हूँ. एक्चुअल में हम लोग यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वाला पिन हम लोग काउंट नहीं करते, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 वो मिलेगा जब 8 से डिवाइड करें, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे. क्लियर है ये वाला? सो फर्स्ट वाला हम लोग काउंट नहीं करते जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो. सो इसलिए हम लोग को 8/2 करके +1 करना है, तब हम लोग को 5 आएगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, in our this question also, the total rungs means steps जो है are कितने हैं? 10 है इसमें. नहीं 10 नहीं, वो that we have to find. So distance between these two is given 2.5 meter. 2.5 meter means 250 सेंटीमीटर, और दो के बीच का गैप दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल डिस्टेंस है सबका. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे? यूज द सेम कंसेप्ट. 250 by 25 you have to add 1 also. How much you will get the number of rungs? 11. 11. You will get 11. So it is given that the top and bottom rungs are 250 centimeter apart, and the gap between two consecutive rungs is 25 centimeter. So therefore number of rungs is equals to 250 by 25 plus 1 is equals to 11. जब नेट में तुम लोग सर्च करोगे तो कहीं कहीं आंसर 250 by 25 ही लिखा हुआ है, तो that is wrong. Okay, so now the value of n is 11. Now in the question itself it is given that the rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top.
ओके, सो लार्जेस्ट रंग 45 सेंटीमीटर है और स्मॉलेस्ट जो है वो 25 है. लार्जेस्ट वाला बॉटम में है एंड द स्मॉलेस्ट वन इज एट द टॉप. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, तो वो एपी फॉर्म करेगा. तो सो द लेंथ ऑफ द रंग्स फॉर्म एन एपी विथ ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर जो बॉटम में है एंड एल द लास्ट टर्म is 25 centimeter, or we can write an also, there is no issue. Okay, so a भी है, l भी है, n भी है. हम we have to find the total wood required for the rungs, length of wood. तो हम लोग को SN निकालना है. So which formula you will use, the first one or the second one? Second one. Very good, because the first term is given, last term is given. So length of wood required to form 11 rungs is equals to n by 2 into a plus l. अगर an लिखे तो यहाँ पे an लिख लेना है. Now the value of n is 11 and the value of a is 45 and the value of l is 25. We'll substitute all the values. 45 plus 25 होगा 70 and 70 divided by 2 35 and 35 into 11 will be 385 centimeter. If you want, you can write it in meter also, 3.85 meter. Anyway, दोनों सही हैं. Hence, the required length of the wood to form these rungs is 3.85 meter. So यहाँ तक सबको clear है? Yes, sir. Okay. Now we'll move towards the next question. Now this is a very very good question. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it and find this value of x. So यहाँ पे I would like to explain again. Suppose हम लोग का ये houses है up to 49, ठीक है, और बीच में एक हाउस x है. ओके, और उससे पहले क्या होगा, x माइनस 1, उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं. और व्हाट द नंबर ऑफ हाउस आफ्टर x इज x प्लस 1. सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, the sum of the number of the houses preceding the house number x, मतलब यहां से लेकर यहां तक. right? Now the sum of the numbers, इसको मैं थोड़ा सेपरेट लिख देता हूं, यहां पर नीचे लिख देता हूं. right? Now the sum of the numbers of the houses following it, मतलब यहां से लेकर यहां तक, x को जो फॉलो कर रहा है, बाद में जो आ रहे हैं उनका सम, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं. ये दोनों का सम इक्वल है बोल रहा है. ओके, तो हाउ विल यू फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर्स? वेरी सिंपल. क्या करना है हम लोग को, ये पूरे में से अप टू x तक माइनस कर लो. मैं फिर से बता रहा हूं, यहां से यहां तक क्या होगा, s x माइनस 1. ओके, नेक्स्ट इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, s x माइनस 1. एंड यहां से यहां तक क्या होगा, पूरे में से पूरा कितना होगा, s49, उसमें से s x माइनस कर लो. ये पूरे में से, दिस इज द फुल, इसमें से इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस वन विल गेट द सेकेंड पार्ट. ये वाला क्लियर है? फिर से समझा सकते हैं, डाउट आ रहा है. ठीक है. मैं काम करता हूँ, तुम लोग को इसमें ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं तुम लोग को दूसरे
सॉफ्टवेयर में लेके जा रहा हूँ ताकि वहां पे मैं कुछ ड्रॉ करके अंडरलाइन करके समझाऊं। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पहले पढ़ो, देखो। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Right. Whether my screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे थोड़ा Yes, ध्यान sir. यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ। Okay. So 1, 2, 3, 4 up to बीच में मैंने बताया था x -1 होगा, उसके बाद x होगा, उसके बाद x + 1 होगा और उसके बाद जाता रहेगा अप टू 49। ओके, सो ये चीज क्लियर है सबको? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सी केयरफुली, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट x के पहले वाले जो नंबर्स का जो सम है, s के पहले वाले जो नंबर का जो सम है और s के बाद वाले जो नंबर का सम है, s के बाद वाले, x के बाद वाला मतलब यहां से यहां तक है, ये दोनों इक्वल है करके दिया हुआ क्वेश्चन में। ये चीज समझ में आया कि नहीं? जिसको डाउट था समझ में आया ना? ओके, तो इसमें ये जो मैं जो ग्रीन कलर में जो मार्क करके रखा हूं, इसका सम कैसे लिखोगे? s x - 1, राइट? समझ में आया कि नहीं ये वाला? यस सर। ओके, अब ये पूरे का सम कितना होगा बताओ? यहां से यहां तक पूरे का सम कितना होगा? 49. यस, S49, इसको मैं यहां पे लिख दिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट में मैं ये पूछ रहा हूं कि ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि दूसरे कलर से कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक का सम कितना होगा? सर इसका प्लस x यहां तक का होगा sx होगा बस। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अभी ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का sx है और ये पूरा S49 है, तो ये रेड वाला मार्क का कितना वैल्यू होगा? उस 49 में x माइनस कर दो। ये चीज समझ में आया कि नहीं? पक्का? यस सर। पक्का? Yes, sir. ये वाला जो होगा वो कितना होगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S49 माइनस SX। ये कितने लोग को नहीं समझ में आया अभी भी? ये जो रेड कलर का मार्क है, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, Yes, sir. अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स दोनों का सम इक्वल है, तो ग्रीन बॉक्स का सम कितना है? SX -1. वेरी गुड। और रेड बॉक्स का? S49 - SX. Okay, so according to the question, we can write directly that Sx - 1 is equals to S49 minus Sx. Agree? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. और एक बार तुम लोग वो मेरा YouTube वाला वीडियो लेसन देख लेना, उसमें मैं दूसरे तरीके से बताया हूँ बोर्ड में। So ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। So
Let us start with the solution then. Since the number of houses are uniformly increasing by 1, therefore it forms an AP. And this is the number what just now I explained. Or such that 1 plus 2 plus 3 plus so on, or up to x minus 1 is equals to x plus 1 plus x plus 2 so on up to 49. This is given in the question. And we can write s x minus 1 is equals to s49 minus sx. Let it be equation number 1. This is clear to all of you? Yes, sir. Okay. sir. अब म्यूट कर लो. अभी हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला एस एन का, n by 2 a plus l, राइट. और ये सभी के लिए हम लोग के पास लास्ट टर्म पता है. ध्यान से देखो, इसका लास्ट टर्म x माइनस 1 है और इसका लास्ट टर्म 49 है और इसका लास्ट टर्म x है. ओके. और सभी का फर्स्ट टर्म सेम है 1. फॉर x माइनस 1 ऑल्सो द फर्स्ट टर्म इज 1. For 49 also the first term is 1, and for Sx the first term is 1. So we will substitute the formula n by 2 a plus l फर्स्ट वाले के लिए, और 49 by 2 into 1 plus 49 इसके लिए, and x by 2 into 1 plus x for this one. Now here this 1 will be cancel और सिर्फ x बचेगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो स्टेप है, ये जो टर्म है जिसको मैं अभी कर्सर से दिखला रहा हूं, दिस वी विल शिफ्ट टू दिस साइड, तो प्लस हो जाएगा. दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूं. देखो 49 by 2 into 50, 52 से कैंसिल हो रहा है 25 into 49 इट विल बी 1225. और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो टर्म है पूरा वो हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट. और ये टर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यहाँ पे x बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 1 by 2. दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ x by 2 वी हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू, तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे x प्लस 1. See carefully, this minus 1 plus 1 will be cancel. और उसी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 को इसे इंटू कर लेंगे. अदरवाइज यहाँ पे 2x आएगा तो उस 2 को भी या इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं. दोनों तरीके से भी सेम आंसर आएगा. सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है. सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 अगेन डिवाइडेड बाई 2. नाउ 1225 किसका स्क्वायर है? Anyone? जल्दी. वन 1225 किसका स्क्वायर है? 35. स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35. एक्चुअली जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि x जो है वो हाउस नंबर है, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, सो वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव. सो हेंस x इज इक्वल टू 35. अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं. नाउ दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन. अ स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स. ये जो स्टेप्स दिख रहा है वो 15 है, यहाँ जो टोटल स्टेप्स दिख रहा है, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर. 50 ये 50 मीटर है, फिगर में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यू मेक इट करेक्शन. 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट. ईच स्टेप हैज a rise of 1 by 4 meter and a tread of 1 by 2 meter. See this figure. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे लाइक दैट. अब तो पूरा डिवाइड करेंगे, मैं केवल थोड़े से डिवाइड करके दिखलाया हूं. और ये जो एक जो लेंथ है ये क्यूबॉइड फॉर्म करेगा और उसका विड्थ 1 by 2 है. किसी का अनम्यूट हो गया, देखो म्यूट कर लो मोबाइल. विड्थ इज 1 by 2 मीटर एंड लेंथ इज 50 मीटर.
ये 50 मीटर है ना, सेंटीमीटर गलती से लिख दिया, गलती से हो गया यहाँ पर. एंड द हाइट इज 1/4 मीटर. सेकेंड वाले के लिए सारे सेम रहेंगे, केवल हाइट चेंज होगा, 1/4 प्लस 1/4. थर्ड वाले के लिए सभी सेम रहेगा, हाइट चेंज रहेगा. सारे जो क्यूबॉइड्स जो हम लोग को मिलेंगे उसका केवल हाइट चेंज होता जाएगा. दैट इज 1/4 प्लस 1/4 फॉर सेकेंड. थर्ड के लिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3 बार करेंगे. एक मिनट यार, एक बार हर्षिता. ओके. हारिका, व्हाई यू आर लेट? ये देखो, ये जाइना भी लेट हो गई है. जाइना एंड हारिका, व्हाई यू आर लेट? सर नेटवर्क इश्यूज था सर. अभी बीच बीच में मैं कैसे, मैं स्क्रीन पे रहूंगा तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा ऐड करना है करके? ओके, लीव इट. अनम्यूट कर, म्यूट कर लो. नाउ फॉर द फर्स्ट concrete, first step, the concrete will be L into B into H, right? So 1/4 into 1/2 into 50. यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो रहा है 50, सो हम लोग को 25/4 मिलेगा. सेकेंड स्टेप के लिए मैंने बताया था, सेकेंड स्टेप के लिए केवल हाइट चेंज होगा, 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4 हो जाएगा, इंटू हाफ इंटू 50. सो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? 25/2, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया ये, और ये 50/4 25/2 हो जाएगा. और थर्ड स्टेप के लिए 1/4 1/4 1/4 3 हाइट आएगा, 3/4. और सर, हाँ, हाइट ग्राउंड से लेना है सर. हाइट ग्राउंड से लेना है, ग्राउंड से लेना है, ग्राउंड से. ओके, सो इसका आएगा 75/4. नाउ सी, ऐसे हम लोग को 15 स्टेप्स तक चलना है. सो व्हाट इज A1 हियर? 25/4. A2 इज 25/2 एंड A3 इज 75/4. अब हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, सेम आ रहा है कि नहीं. सो फर्स्ट 2 का डिफरेंस. नाउ विल टेक एलसीएम. दोनों का एलसीएम 4 है, और इन दोनों को 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा. 50 माइनस 25, 25/4. नाउ A3 माइनस A2, यहाँ पर भी एलसीएम 4 है, और ये दोनों को 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा. सो हियर ऑल्सो 25/4. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, द डिफरेंस इज सेम, सो दैट विल इम्प्लाई देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP. सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन शो कि वो AP फॉर्म कर रहा है. अब हम लोग को क्या निकालना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट. सो 15 स्टेप्स दिया हुआ है. सो विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. सो n यहाँ पे 15 है, a कितना है? 25/4. d इज ऑल्सो 25/4, राइट? सो यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/2 हो जाएगा फर्स्ट वाला, एंड दिस विल बिकम 14 इंटू 25/4. अगेन वी कैन टेक एलसीएम. एलसीएम इज, यहाँ पर ये 7 और 2 से कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ पे 7 और 2, 7 इंटू 25 175 होगा, एंड 175 प्लस 25 इज 200. सो फाइनली विल गेट 100 हियर. 100 into 50/2 is 750. Hence, the total volume of concrete required to build the terrace is 750 meter cube. इसमें मैं वापस डायग्राम के पे जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो. आई एम गोइंग बैक टू द डायग्राम. यहाँ पे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, इसको पहले लेके सेकेंड. सबको कर्सर दिख रहा है मेरा? यस सर. हाँ, तो ऊपर से जब हम लोग जैसे ये पहला क्यूबॉइड ले लिया, सेकेंड क्यूबॉइड, थर्ड क्यूबॉइड, फोर्थ क्यूबॉइड, तो यहाँ पर विड्थ चेंज होता जाएगा, हाइट सेम रहेगा. मतलब फर्स्ट विड्थ हाफ, सेकेंड विड्थ 2/2, थर्ड विड्थ 3/2. तो वैसे भी कर सकते हैं, सेम आंसर यू विल गेट. So let us move towards the next concept. हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये 5 हम लोग कंप्लीट करेंगे.
Now this is a different type of question which is not based on our NCERT, but इसमें से जो फोर्थ और थर्ड क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और सेकंड वाला क्वेश्चन भी आते रहता है एग्जाम में. सो 2, 3, 4 दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए जो मेथड यूज करना है दैट आई विल एक्सप्लेन. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद AM. AM इज अरिथमेटिक मीन. ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग. अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. Let A, capital A, B are in AP. Then we say that A is the arithmetic mean between A and B. And it is abbreviated as AM. So, A को हम लोग AM को A से denote कर रहे हैं and that is between A and B. And we know that if A, capital A, B are in AP, their difference is same. So second term minus first term is equals to third term minus second term. Now shift minus capital A to this side, it will become plus A capital A, or minus small a to this side, it will become minus plus A. So finally we'll get A is equals to half of A plus B. So जो हम लोग mean जो formula पढ़े statistics में, that is the same thing only. How will you find mean? The sum of terms divided by the number of terms. So A और B दो टर्म है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 2. सो दोनों का जो मीनिंग जो है वो सेम है. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल. अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B is given by half of A plus B or A plus B by 2. Find the AM between 13 and 19. अदनान, किसका आइडिया है? Okay, find the AM between 13 and 19. So AM कितना हो जाएगा? 13 plus 19 by 2. 13 plus 19 is 32, by 2 is 16. Now we'll see one more, the second practice question. If the numbers 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP, find n and hence find these numbers. So इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा अगर ये AP में है तो. So second term minus first term and third is equals to third term minus second term. Otherwise we can use directly that formula, that the middle term is equals to, अभी फॉर्मूला देखे थे ना हम लोग, A is equals to कैपिटल A is equals to A plus B by 2. So वो वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. और वो वाला फॉर्मूला मैं जो आज ब्लैक बोर्ड वाले जो क्लास है यूट्यूब वाला, उसमें उससे उस मेथड से किया हूं मैं. यहाँ पे दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉमन डिफरेंस वाला. A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. नाउ ओपन द ब्रैकेट. यहाँ पे n बचेगा प्लस 3. बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दिस विल बिकम प्लस. हियर 3n विल बी लेफ्ट एंड माइनस 3. So n plus 3 is equals to 3n minus 3. So finally we'll get 2n is equals to 6 and n is equals to 3. अब यहाँ पे substitute करो. 2 into 3, 6 minus 1, 5. 3 into 3, 9 plus 2, 11. 6 into 3, 18 minus 1, that is 17. So numbers are 5, 11 and 17. So this is the second question. Now we are moving towards a very important topic जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में था कि 3 नंबर और 4 नंबर वाले AP को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. सो 3 नंबर्स वाले जो AP है उसमें हम लोग एज्यूम करेंगे A minus D, A plus D. If you see carefully, the common difference is D. और 4 नंबर्स वाले को एज्यूम करेंगे हम लोग A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2D है. सो इवन नंबर टर्म्स को के AP को अगर एज्यूम करना तो वी विल कीप कॉमन डिफरेंस 2D एंड सच दैट इफ यू ऐड ऑल द टर्म्स, ऑल D टर्म्स विल बी कैंसल. जैसे यहाँ पे माइनस D और प्लस D कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे माइनस 3D प्लस 3D माइनस D प्लस D कैंसिल होगा, ओनली A टर्म विल बी लेफ्ट. सो 5 नंबर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? A minus 2D, A minus D, A
a plus d, a plus 2d. So अभी जो हम लोग का जो क्वेश्चन था 3 नंबर्स वाला, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. The sum of 3 numbers in AP is 21 and their product is 231. Find the numbers. So what in which form we will assume? The first one, this one. Let the numbers be a minus d, a and a plus d. Now the sum in the question, it is given 21. So इन तीनों का sum 21 दिया हुआ है. So जब ऐड करेंगे तो ये d और d कैंसिल हो जाएगा. We'll get 3a only. So 3a is equals to 21 and a is equals to 7. Okay. So the second condition is given the product. Product is 231. So इन तीनों का जो into है वो 231 है. So फर्स्ट और लास्ट देखो, ये a plus b into a minus b के फॉर्म में है. So वो हो जाएगा a square minus b square. Now the value of a is given, that will substitute. तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये 7 square minus d square, that is 49 minus d square. और नेक्स्ट स्टेप में ये 231 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज 7 को मल्टीप्लाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 343 आएगा. 343 minus 231, that is 112. And divided by 7 it will be 16. So we'll get the value of d as plus minus 4. So यहाँ पर भी एक 4 के लिए हम लोग को एक नंबर्स मिलेंगे और माइनस 4 के लिए. So when किसी का माइक ऑन हो गया, देखो ऑफ करो. When d is equals to plus 4, the numbers are a 7 minus 4, that is 3. नेक्स्ट था a और दूसरा था a plus d, that is 7 plus 4, 11. And when d is equals to minus 4, उसका उल्टा होगा, रिवर्स, 11, 7 and 3. Hence the required numbers are 3, 7, 11 और 11, 7, 3. ये तो हो गया 3 नंबर्स वाला. 4 नंबर्स वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 4 नंबर्स वाला बोर्ड एग्जाम में. Find the 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120. So 4 नंबर को कैसे assume करना था, मैंने बताया था a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d. Sum is given 20, सबका sum. इसमें देखो minus 3d plus 3d से कैंसिल हो जाएगा, minus d plus d से कैंसिल हो जाएगा. So what we will get, 4a is equals to 20. That is a is equals to 5. Now in the question it is given sum of squares of all these 4 numbers is 120. तो पहले लिख लेते हैं ये वाला step. Now we'll expand all by using a plus b whole square and a minus b whole square. तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, a square minus 6d plus 9d square. सेकेंड वाला हो जाएगा a square minus 2d plus d square. थर्ड वाला हो जाएगा a square plus 2d plus d square. And the fourth one will become a square plus 6d plus 9d square. Now see carefully, all these d terms will be cancelled. Minus 6d plus 6d से cancel हो जाएगा, minus 2d plus 2d से cancel होगा. And how many 4 a square are there? How many a square are there? 4. 1, 2, 3, 4. और d स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 20. So 4a square plus 20d square will left. We'll take 4 common. This step is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we'll substitute. The value of a is given. The value of a is given. So before that 120 we will divide it by 4. We'll get 30. Now we'll substitute the value of a. a कितना आया था हम लोग को, 5. उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर 25 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे. So that will become minus 25. So 30 minus 25 will be 5. And finally we'll get d square is equals to 1 and d is equals to plus minus 1. So एक बार d is equals to plus 1 के लिए नंबर्स निकालेंगे और d is equals to minus 1 के लिए.
तो नंबर्स क्या क्या था, a माइनस 3d, राइट, दैट इज 5 माइनस 3, 2 हो जाएगा। सेकेंड नंबर था a माइनस d, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट a प्लस d, दैट इज 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। द लास्ट a प्लस 3d, दैट इज a प्लस 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। सो 2 4 6 8 वी गॉट। एंड व्हेन वी विल टेक d इज इक्वल्स टू -1, ये बिल्कुल उल्टा मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा, दैट इज 8 6 4 2। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 4 6 8 और 8 6 4 2। आज 3 बजे जो लाइव प्रीमियर है एक बार देख लेना, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम कंटेंट है, सेम क्वेश्चंस हैं। सो नाउ विल मूव टुवर्ड द लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Divide 24 in 3 parts such that they are in AP and their product is 440. See, this is very similar to third question जो किए थे हम लोग। वहां पे क्या दिया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सम ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ था। ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो दोनों सेम क्वेश्चन है। तो 24 को 3 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो 3 नंबर्स, दैट इज 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स AP में होंगे। सो सेम विल टेक a minus d, a plus d, and the sum is 24. So dd will be cancelled and 3a is equals to 24, that is a is equals to 8. ये minus d plus d cancel हो जाएगा और 3a is equals to 24 मिलेगा। So a 8 मिल गया। Now the product is given 440. So इन तीनों का जो प्रोडक्ट है 440 हो गया। सो a माइनस डी और a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 8 इंटू 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। नाउ 440 को हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं तो 55 मिलेगा। नाउ इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, सो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 माइनस 55, दैट इज 9 एंड t इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक बार हम लोग d का वैल्यू +3 लेंगे, तो +3 लेंगे तो कितना होगा, देखो 8 माइनस 3 दैट इज 5, सेकेंड वाला 8, थर्ड वाला 8 प्लस 3 11। सो कितना मिल गया, 5 8 11। जब -3 लेंगे तो रिवर्स में मिलेगा। हेंस द नंबर्स आर 5 8 11 और 11 8 5. So these are the practice questions, and we'll do some more difficult questions or hard questions or some other questions, board exam questions when we will do revision. Syllabus होने के बाद जब हम लोग revision करेंगे तो उस समय हम लोग कुछ और practice questions करेंगे। Now let us move toward the assignment questions of the day. I already told you that today I will give assignment questions. So 7 questions हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो फर्स्ट वाले सेकंड वाले क्वेश्चंस के बेसिस पे है, और फोर्थ फिफ्थ 3 नंबर्स पे और सिक्स्थ सेवेंथ 4 नंबर्स पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।